Hi Arpit, welcome on Europedia. Thank you, sir. So Arpit, many congratulations to you and your entire family for getting selected in one of the most prestigious research institute of India, that is DRDO. So Thank, congrats. thank you, sir. The wonderful opportunity, Arpit. You're a computer engineer and presently you're pursuing your masters from very reputed institute of India, IIT Kanpur. You're doing your MTech in computer science and at the same time you got selected in DRDO. So my today's interaction is related to your journey, academic journey, and how you prepared and whatever information you want to give to the prospective technocrats and scientists of India, because DRDO kind of institutes, DRDO, BARC, ISRO, these are the premium research institutes of India, and many youngsters want to be the part of that. So उनको आइडिया नहीं होता है कई बार, और आप जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट से दे टेक इंस्पिरेशन, एंड वट एवर यू विल बी सेइंग दे विल लिसनिंग इट वेरी केयरफुली. So my request to you is, share your journey, share your information with the intention that okay, it may help some candidates in future. So I start with your background, Arpit. Please tell us which part of India you are from, और आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया, बीटेक आपने कहाँ से किया, बीटेक में आपका सीजीपीए कितना था, एंड कीप शेयरिंग सर्टन थिंग्स, लाइक अगर आपका कभी बीटेक में मार्क्स बहुत कम आ गया या यू हैड अ बैड फेज, और आपने कब डिसाइड किया कि मेरे को अब इस डायरेक्शन में चलना है, बिकॉज यू मस्ट हैव प्लान्ड इट लॉन्ग बैक about writing gate exams or going for DRDO and all these things. So let's start with your that journey. So from your background first. I am basically from Radhabad district, Uttar Pradesh, and I have done my bachelor's in computer science from Triple IT Nagpur, where I got CPI of 8.16. During the initial phase of the college, in first or second year, I have not done very good. My CPI was almost 7 to 7.5 in first 3 years almost in the college. In the third college, I wrote GATE exam for the very first time, and in that GATE exam, I got 710 rank. Then Mhm, my professors मतलब suggested me to write GATE again, क्योंकि they mhm, told कि in the next attempt you can do much better and you can go for a government job. Means they mhm, introduced DRDO to me. Like I know DRDO, but I don't know कि via GATE I can work in DRDO, and so I wrote GATE again, and in that GATE exam, I got 380 rank, which was not that good for a mhm, government job. But mhm, luckily, I got one, mhm, mhm, and mhm, so means I can say कि DRDO is not that type of institute की जहाँ पे वो आपसे मतलब memorization वाली चीज expect करे in the interview. Means कि mhm. वो real life examples देते हैं, real Okay. life case studies देते हैं. अच्छा. Mhm. Okay, Arpit, I'll come to interview little later. Okay. First, आपने थर्ड ईयर में गेट लिखा एंड फाइनल ईयर में अगेन यू रोड द गेट, राइट? सो Yes, दैट sir. दैट मीन्स थर्ड ईयर में गेट लिखना चाहिए एक बार, राइट? यस सर, थर्ड ईयर में गेट जरूर लिखना चाहिए इफ यू आर थिंकिंग अबाउट हायर स्टडी और गवर्नमेंट जॉब और आईआईटी और एनीथिंग. आपको थर्ड ईयर हम्म, में गेट जरूर लिखना चाहिए वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट. क्योंकि थर्ड ईयर हम्म, में जब आप गेट लिखते हैं तो क्योंकि आपने अपने बीटेक में वो सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं पढ़े ही होते हैं, तो थर्ड ईयर में गेट हम्म। लिखना आपको एक इनिशियल फेज बता देता है कि आप बिना किसी प्रिपरेशन कहाँ के पे थे? कहाँ स्टैंड कर रहे हो. ट्रू. अच्छा अर्पित, आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से भी हो एंड आई एम वेरी श्योर आपकी कंप्यूटर में नॉलेज भी अच्छी होगी, यू आर अ गुड स्टूडेंट, और आपका सीजीपीए भी अच्छा रहा है बीटेक में, तो दैट शोज कि आपने अच्छा काम किया है. प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा क्रेज होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग डोमेन में, क्योंकि बहुत सी कंपनियां आती हैं, बहुत अच्छा पैकेज लगाती हैं आपके ऊपर, वो सारा आपको मिलता है. तो हाउ कुड यू रेजिस्ट कि मेरे को प्लेसमेंट में नहीं जाना, मेरे को बड़े बड़े पैकेज नहीं उठाने, और मेरे को जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना? एक्चुअली सर, फर्स्ट की मुझे ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम आई डिड, बट मेरे को इतना कभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया. व्हेन आई हम्म, प्रिपेयर फॉर द गेट तो मुझे हम्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, रिसर्च साइड मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो वहाँ पे भी हम्म, मुझे लगा कि हम्म, मीन्स मैंने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर ही नहीं किया था अपने हम्म, बैचलर्स में. आई इवन डिडंट सिट इन द प्लेसमेंट. तो वहाँ पे हम्म, थोड़ा सा लगता तो है कि जब साइड वाले अपने रूममेट्स हम्म, एंड ऑल जब प्लेस्ड होते हैं, इंटर्नशिप्स हम्म, लेते हैं, हम्म. इस तरह.
ओके, सो आप मतलब प्लेसमेंट्स आपने किए नहीं और आप फोकस करते रहे अपने गेट के एग्जाम्स की तरफ। Yes, sir. It was my first interview, DRDO. हम्म। ओके, So, वंडरफुल। अब अर्पित, आपका आईआईटी में आप अपना गेट का रैंक आपने बताया, फिर आपको आईआईटी कानपुर मिल गया और एमटेक आपने ज्वाइन कर लिया। सो थोड़ा टाइमलाइन बताओ कि आपका आईआईटी कानपुर कौन से मंथ में आपने ज्वाइन किया, और जो डीआरडीओ है उसका कब जैसे इंटरव्यू आया, और फिर हम चलते हैं इंटरव्यू के डिटेल्स के ऊपर कि इंटरव्यू कैसा गया था आपका। सर फेब फेब 2025 में सर गेट हुआ था एंड हम्म। अप्रैल तक आईआईटी कानपुर ज्वाइन हो गया था एंड at the end of first year my end sem of first sem ends on 22 November and 27 November को was my DRDO interview. ओके। हम्म। Yes, ओके, sir. सो दैट वाज इन आरएसी दिल्ली, राइट? आपका Yes, sir. इंटरव्यू। REC Delhi. हम्म। थोड़ा आप डिटेल में बताना इंटरव्यू कैसा गया आपका, जब आप गए तो कितने लोग साइंटिस्ट वहां बैठे थे, कितने लोग बैठे थे वहां पे, और किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे आपसे। ओके, सो सॉरी फॉर दिस स्मॉल टेक्निकल ग्लिच अर्पित। सो अर्पित, आई वाज आस्किंग अबाउट द टाइमलाइन कि आपका डीआरडीओ में इंटरव्यू कब, आपने बताया कि नवंबर में आपका 27 नवंबर को हुआ। Yes, नाउ sir. इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं अर्पित। व्हेन यू वेंट देयर, हाउ मेनी पीपल वर सिटिंग देयर, एंड व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड टू यू। सर DRDO का काफी टेक्निकल इंटरव्यू था. There were 5 members in the panel. One is the chairman. Two of them I think are IIT professors and two are the DRDO scientists. हम्म। मीन्स मेरा इंटरव्यू काफी मतलब आफ्टर लंच मेरा इंटरव्यू था और जो कि लगभग 1 hour 40 minutes तक चला था हम्म। एंड माई इंटरव्यू वॉज द लास्ट वन एंड जनरली क्या होता है कि जो लास्ट में इंटरव्यूज होते हैं वो थोड़ा लॉन्ग ही चलते हैं. हम्म। जी. हम्म। तो वहाँ पे 5 members थे एंड दे डोंट इवन टेक माई इंट्रोडक्शन क्योंकि व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड की इंट्रोडक्शन अपना बोलना है जिसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह एंड फेवरेट हम्म। सब्जेक्ट्स वहीं पे इंक्लूड करने हैं देन द इंटरव्यू गोज इन दैट डायरेक्शन. हम्म। बट आई जब मैंने ग्रीट किया कि गुड आफ्टरनून सर तभी उन्होंने कहा कि गुड आफ्टरनून अर्पित एंड दे स्टार्टेड रीडिंग माय डॉक्यूमेंट्स कि you have done your bachelor's from Triple IT Nagpur with a CPI of 8.16. That's good. And you have also done good subjects and so on. वो वहां से उन्होंने करना चालू कर दिया and They mentioned about IIT Kanpur also. they asked कि what you are currently doing. Are you Okay. employed anywhere or are you Hmm. doing any higher study? So I mentioned Hmm. IIT Kanpur. And then the famous question came कि if you get selected in DRDO, what will you choose, IIT Kanpur or DRDO? Then. I think आई सेड कि यहाँ पे मेरा थोड़ा आंसर गलत भी हो गया था. आई सेड कि देयर इज अ प्रोविजन इन माय कॉलेज कि इफ यू कंप्लीट फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज तो आप वहां Hmm. से एग्जिट कर सकते हैं बाय टेकिंग डिप्लोमा नॉट एमटेक डिग्री. बट हाँ। देन दे आस्क कि व्हाट इफ यू डोंट इवन कंप्लीटेड 1 year. हम्म। तो फिर वहां पे उन्होंने खुद ही ड्रॉप कर दिया. दिस ओके। या उनको लग गया कि बिगिनर है इनको ये ज्यादा प्रिपेयर करके नहीं आए. ओके, when they went for technical, या दे वेंट फॉर टेक्निकल. did they ask you your favorite subjects or directly they started? They asked me about my favorite subject and they asked me about my project work. But Project of BTech, right? yeah, any type of project. I Okay. mentioned one MTech project which I have done in my first sem. I Hmm. mentioned my BTech final year project and I mentioned my research internship which I have done Okay. during my BTech phase. So I mentioned Hmm. these three projects and Hmm. there is a point कि ड्यूरिंग द रिसेस ब्रेक मैं कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स रिवाइज कर रहा था क्योंकि सभी से उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछा था सुबह से. तो देर इज अ मैन हु केम एंड हु सॉ मी रीडिंग द कंप्यूटर नेटवर्क नोट्स. अच्छा। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. फिर बाद में जब हम्म। मैं इंटरव्यू देने गया तो ही वॉज इन द पैनल. ही वॉज प्रोफेसर. अच्छा। या सो दे हम्म। डिडंट आस्क इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क इन माय अच्छा। इंटरव्यू. वो he यस was सर. so observant कि उन्होंने आपको देख लिया and then हाँ, it was not, हाँ। दे वो वर गुड। वेरी ऑब्जर्वेंट. That means कि बाहर जब आप बैठते हो तब भी you are under या तब भी surveillance। आप मैटर हम्म। करते हो कि आप क्या कर रहे हो. हम्म। आप ज्यादा नर्वस तो नहीं दिख रहे एंड सो गुड गुड। एंड अच्छा। एंड सर मीन्स वो बहुत ऑब्जर्वेंट थे एंड ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू दे उन्होंने मेरे को बिलीव करा दिया कि मेरा इंटरव्यू बहुत ज्यादा गंदा जा रहा है.
वो हम्म एक भी क्वेश्चन पे सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे थे। मतलब वो लॉन्ग लॉन्ग बोलते जा रहे थे, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स विद अ रियल लाइफ प्रॉब्लम कि इफ आई हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेरे पास अलग अलग जॉब लेंथ की अलग अलग लेंथ की जॉब्स आ रही है और मैं उसको एक एक करके इंसर्ट कर रहा हूँ। तो वहां तक हम्म मुझे लगा जॉब शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं। हम्म देन ही आस्क्ड मी मैं यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा। तो हम्म आई थिंक एंड आई स्टेट की प्रायोरिटी क्यू की प्रायोरिटी क्यू हैज द प्रॉपर्टी कि आप हर एक स्टेप में मैक्सिमम को कैरी आउट कर सकते हैं। So he हम्म said it is a implementation, but what is the basic data structure? I said हम्म max heap. So he हम्म go ki what is the time complexity if I insert one by one? So I said n log n. Then he हम्म said ki can we do it big O of n? So I हम्म said if we apply heapify, तो he asked कि heapify को कैसे करेंगे कि वो हम्म complexity कम कर देता है। तो I हम्म explained कि पहले CBT बनाएंगे एंड फिर एक एक हम्म करके उसको सॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो हम्म he asked me कि heapify का कोड लिख के दिखाओ एंड सो मीन्स वो एक ही क्वेश्चंस को जब तक इलांगेट कर देंगे जब तक कि आप खुद ही उनको सॉरी हम्म सर नहीं बोल देते। अच्छा या चलता रहेगा आगे हाँ चलता रहेगा सर एंड ये हर हम्म एक क्वेश्चन में ही हुआ है। अच्छा they asked you to go on the board and write something on the board no नो सर इट वाज लाइक कि इट वाज यू शेप्ड पैनल एंड okay सारे प्रोफेसर्स यहाँ पे थे। यू वर इन द मिडिल विद अ रोटेटिंग व्हील चेयर एंड हम्म एट फर्स्ट यू टर्न विद हम्म अ प्रोफेसर। जब इनका okay हो गया तो यू टर्न योरसेल्फ टू द सेकंड प्रोफेसर एंड सो ऑन। yep यू हैव अ हम्म स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ पेन हम्म टैप एंड देयर वर हम्म प्रोजेक्टर्स इन द बैकग्राउंड। You have to हम्म write everything on the pen tab papers हम्म and it हम्म is visible to them in the projector. ओके अच्छा अर्पित सो ये तो एक ने पूछा सबने आपसे क्वेश्चन पूछे एवरीबॉडी Yes, आस्क्ड sir. यू क्वेश्चंस Yes, sir. Everyone has take approx 20 to 30 minutes. What are the typical questions asked in project? Like you said, I had done projects. तो उसमें कैसे Yeah. क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग? First, they asked me कि whether I have bring a report with me of my projects or not. अच्छा So ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपके प्रोजेक्ट्स अगर आपका मेन पॉइंट्स है तो आप उसकी रिपोर्ट्स भी लेके जा सकते हैं वहाँ अच्छा पे you प्रिंट। can take your project report also, right? यस यू कैन टेक योर Very प्रिंटेड रिपोर्ट्स। very तो good. मैंने कहा कि मेरे पास प्रिंटेड रिपोर्ट्स तो नहीं बट इट इज प्रेजेंट अवेलेबल ऑनलाइन। आई थिंक Yes. दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू जस्ट चेक कि इवन आई हैव वर्कड और नॉट। आई जस्ट Okay. मेंशनड मतलब सिर्फ मेंशन तो नहीं किया। तो हम्म दे स्टार्टेड विद द फ्लो डायग्राम लाइक हम्म पूरा फ्लो डायग्राम ऐसे बना के दिखाओ। एंड हम्म देन दे आस्क्ड मी अबाउट every model that I have used and I have constructed। हम्म बहुत डिटेल में गए थे। अप्रॉक्स एक एक प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट किसी किसी प्रोफेसर ने पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर ही पूछा। एंड देर इज ऑल्सो वन पॉइंट कि अगर एक प्रोफेसर ने किसी एक टॉपिक पे स्टार्ट कर दिया तो नेक्स्ट प्रोफेसर उसी टॉपिक को कंटिन्यू भी कर सकता है विदाउट हम्म चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंटरव्यू। सो हम्म ये भी बहुत मैटर करता है कि आपका इंटरव्यू स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा अर्पित कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आया होगा। यस सर। इसमें सर मैंने जो ऑब्जर्व किया कि अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो भी आप थोड़ी देर सोचे ब्रेन स्ट्रॉम करें और पेन टेप पे कुछ कुछ लिख के उसको ट्राई करते रहे। लाइक हम्म दिस दे आस्क मी अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि अगर एक मतलब आई थिंक दे आस्क मी अबाउट अ एवीएल ट्री की एवीएल ट्री में मतलब अ, जो ग्रेटेस्ट नोड है वो तो इस साइड में होती है पर सेकंड ग्रेटेस्ट नोड कहाँ पे होती है। इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन विच आई हैव स्टडीड मेनी टाइम्स बट वहाँ पे ये लॉजिक नहीं आ रहा था। तो आई स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग ट्री एंड फिर मैं स्टॉर्म करने लगा कि ये तो इससे छोटा होता है तो यहाँ पे हो सकता है एंड सो ऑन। फिर लास्ट में उन्होंने थोड़ी देर में बोला कि देयर इज नो फिक्स पोजीशन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो ऐसा भी होता है। एंड हम्म एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की कि इन इंटरव्यूज लाइक डीआरडीओ एंड बार्क मोस्टली कि दे दे डोंट एक्सपेक्ट आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। कि अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आप डायरेक्ट वो आंसर ना कहें। यू बेसिकली फर्स्ट मेंशन 1 और 2 स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। बट वो एक्चुअली असर्शन भी आपके एग्जैक्ट पॉइंट्स पे होने चाहिए। एक्चुअली दे डोंट एक्सपेक्ट इवन आंसर दे एक्सपेक्ट द अप्रोच तो या जो आप उस आंसर तक पहुंचने के लिए अप्रोच फॉलो कर रहे हैं ना दे आर इंटरेस्टेड इन दैट स्पेशली इन बीएआरसी बीएआरसी में समटाइम देयर इज नो आंसर एक्चुअली दे जस्ट वांट टू गिव यू हाइपोथेटिकल थिंकिंग ओरिएंटेड प्रॉब्लम
एंड देन दे चेक कि आप उसको अप्रोच कैसे करोगे. Yeah. And they know from the very beginning कि this candidate may not give me the appropriate or right answer, but they just want to check how do you tinker with the concepts, कैसे आप उसको अप्रोच कर रहे हो, कैसे आप सोच रहे हो, and they want you to think. As you rightly said कि अगर क्वेश्चन आता है तो यू वॉमिट आउट इन वन लाइन, दैट शुड नॉट बी डन. अगर नहीं आता तो आप इमीडिएटली इनकार कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो इट शुड बी लाइक ओके यू थॉट, यू आपने सोचा, टिपिकल साइंटिस्ट, आपने सोचा क्वेश्चन के बारे में, and then you thought के how I can converge diverge so that I Sir. eventually approach. वो चीज वो appreciate करते हैं, that is true. Yes, sir. एंड So and एक और yeah. उन्होंने रियल लाइफ प्रॉब्लम, मतलब ऐसे ही बीच में एक प्रोफेसर ने पूछा कि कैन एआई एम्पावर ह्यूमन बीइंग इन नियर Hmm. बाय फ्यूचर. Okay. तो आई सेड कि सर एआई कैन डन वर्क इन अ बेटर वे देन अ टिपिकल ह्यूमन बीइंग, बट एज ह्यूमन बीइंग मेड एआई, सो आई डोंट थिंक कि एआई कैन एम्पावर ह्यूमन बीइंग. तो Hmm. फिर उन्होंने वो उसको पता नहीं किस तरीके से वो टेस्ला कार्स वगैरह में ले गए कि Hmm. टेस्ला वगैरह कार में तो एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है, Hmm. तो उसमें और क्या क्या चीज हम एआई की मदद से कर सकते हैं. Hmm. तो Hmm. फिर मैं उसको थोड़ा एमएल के रीजंस में ले गया था कि ह्यूरिस्टिक रीजंस वगैरह, कि Hmm. सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ को टेस्ला हमें ना ले जाए, वो ध्यान में रखे कि लॉन्ग पाथ है पर फिर भी वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कम है, कोलिजन के चांसेस कम है, तो टेस्ला हमें वहां से लेके जाए. ये सारे एडवांसमेंट अभी टेस्ला वगैरह में होने बाकी हैं, क्योंकि अभी वो सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ को ही कंसीडर कर रहा है. तो ये सब सारी थोड़ी चीजें थी, मीन्स दे कैन आस्क एनीथिंग. ऑब्वियसली इट शुड बी. एंड मेरे को लगता है एक क्वेश्चन से जब आप आंसर करते हो आप, तो वहीं से दूसरा क्वेश्चन निकल आता है, या. एंड दे टेक फॉरवर्ड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली. यस सर. सो आपको इंटरव्यू के टाइम पे लग रहा था कि यू आर हिटिंग द राइट प्लेस, आई मीन राइट डायरेक्शन, और आपका ठीक जा रहा इन द फर्स्ट 30 or 40 minutes मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज दे वर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए है? एंड सब्जेक्ट्स जो कि मेरे को ठीक ठाक आते थे. Hmm. बट देन दे मूव्ड इनटू माय बीटेक मार्कशीट्स कि Hmm. वाओ यू हैव डन माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट्स इन योर बैचलर्स. 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे प्रोग्रामिंग तो आपने की ही होगी, तो इस प्रोग्राम का 8085 का कोड क्या होगा जो आपने वहाँ पे कोड किया होगा. Hmm. So I have Hmm. done in my second year. Hmm. So I said कि सर इतना टाइम हो गया. I state कि sir I have done programming on microprocessor. There was a microprocessor unit connected to a keyboard and in which I have programmed. फिर भी मैंने वो add store, load store वगैरह वो करके मैंने प्रोग्राम लिख दिया थोड़ा बहुत, पर उन्होंने पूरा प्रोग्राम नहीं मांगा. जैसे मैंने Hmm. लिखना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, 3-4 लाइन्स लिखी, वो स्टॉप Hmm. हो गए और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए. Hmm. फिर एचसीआई उन्होंने कहा कि यू हैव आल्सो स्टडीड Hmm. ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इन योर Hmm. बैचलर्स, तो Hmm. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ एचसीआई. तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एचसीआई? Hmm. मैंने कहा सर आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बिकॉज इट वाज अ वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट ऑफ 2 credits, but I have studied about, means they have typically taught me about the positions of icons, what should be the positions of icon on a web page or a web screen, so that the effort, the flexibility of the user get increased, what is the screen to icon ratio, Hmm. and where should be the progress bar and so on. Hmm. 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 वो बीटेक वाला जो पार्ट था वो मेरा काफी वीक गया, एंड लास्ट में Hmm. वही वाला पार्ट हुआ था अप्रोक्स Hmm. 20-30 मिनट्स, तो वो वाला पार्ट मेरा बहुत वीक गया था. ओके. तो टोटल इंटरव्यू कितनी देर चला होगा आपका पे? अप्रोक्स 1 hour 40 minutes तक चला था. 1 hour 40 minutes. यस सर. दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग, बिकॉज इतना तो बीएआरसी में भी नहीं होता है. यस सर, इट वाज वेरी लॉन्ग एंड एट लास्ट आई वाज लाइक कि अब तो मुझे बस इस रूम से बाहर जाना है. हम्म. आई हैव जीरो कॉन्फिडेंस कि इंटरव्यू क्लियर होने वाला है, क्योंकि लास्ट में वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, हम्म. मीन्स कि उन्होंने रिसर्च इंटर्नशिप वाज माय इन रोबोट्स एटोनॉमी एंड हम्म. जेन एआई. तो उन्होंने उस पर बहुत अच्छा पूछा, बहुत सारा पूछा कि आपने किस तरीके से रोबोट पे के ऊपर काम किया. तो हम्म. मैंने कहा कि रोबोट जैसे ट्राई एंड एरर करके पाथ फाइंड आउट करता है, तो आई हैव बिल्ट अ रैग मॉडल जिसके पास सारी लोकल इंफॉर्मेशन होगी. फर्स्ट रोबोट का प्रॉम्प्ट जो होगा वो रैग के पास जाएगा, रैग से वो सारी लोकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, देन इट गेट हम्म. एम्बेडेड
एंड देयर इज अ हम्म, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर, फिर वो एलएलएम के पास जाएगा जहां से रोबोट को एग्जैक्ट पाथ मिल जाएगा जिससे वो कोलिजन नहीं कर हम्म, पाएगा। तो उन्होंने हम्म, बहुत देर तक वो एक एक चीज समझी कि मैंने डेटा सेट कौन सा लिया, मैंने वर्चुअली सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर पे क्या था, डेटा हम्म, सेट तो इसका अवेलेबल नहीं है तो आपको मिला कहाँ से। बहुत हम्म, सारी चीजें एक एक चीज पूछी। और फिर हम्म, लास्ट में उन्होंने बोला कि यू हैव इम्प्लीमेंटेड रैग मॉडल, यू आल्सो इम्प्लीमेंटेड एलएलएम मॉडल, बट यू नो ना कि जो रोबोट्स की चिप होती है वो जनरली बहुत ज्यादा स्मॉल साइज की होती है, स्मॉल कंप्यूटेशनल पावर की होती है, और आपने हम्म, इतना सब कुछ उसके अंदर करने की कोशिश की, तो आपको लगता है कि इससे आपकी इफिशिएंसी घटी नहीं होगी, बड़ी होगी। तो गुड क्वेश्चन। लास्ट में वो हर एक चीज में कंक्लूजन ऐसा ही निकाल रहे थे जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं था। हम्म, हम्म। यस सर। See, despite of that, the approach which you must have followed, Arpit, that got you selected actually. यस सर, आई थिंक। अब बहुत से कैंडिडेट्स को लगता है कि वी विल प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू सो दैट जो भी क्वेश्चन पूछे हम उनका इमीडिएटली आंसर कर पाए। दैट इज नॉट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ, आईएसआरओ, बीएआरसी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू में यू शुड नॉट थिंक ऑफ कि अब मेरे को आंसर मिल जाएगा। इट शुड बी लाइक जैसे आप अप्रोच कर रहे हो पेशेंस के साथ। Yeah, they asked me many things about ML, like हम्म, cleaning data, test data, cross-validation, overfitting, underfitting, confusion metrics, recall precision formulas and all. And not they वो कोई भी सवाल डायरेक्ट नहीं पूछते कि what is the recall, what is the confusion metrics. They are like कि अगर कोई classification problems and you want to हम्म, depict into a matrix form तो आप क्या यूज करना चाहेंगे, हम्म, ऐसा इस तरीके से। तो आई सेट कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी उसमें दिखता है कि कितने सही क्लासिफाइड कितने गलत क्लासिफाइड। एंड फिर वहां हम्म, से वो फिर प्रेसीजन में आ गए, फिर वहां से वो रिकॉल में आ गए, फिर वहां से वो F2 स्कोर में आ गए। एंड फिर लास्ट में जब ये सारे चीजें मैंने लिख के ड्राइव करके दिखा दी, तो दे आस्क्ड कि व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एंड आई वाज हम्म, लाइक कि सर ये तो बस एक मैट्रिक्स है जिससे हम देख सकते हैं कि कितने पॉइंट्स हमारे सही क्लासिफाइड या रॉन्ग क्लासिफाइड, इसकी डेरिवेशन का तो सर कोई। फिर भी उन्होंने कहा कि कोई मैथमेटिकल इंट्यूशन तो होगी इसके पीछे, मीन्स कि साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर कैसे किया। हम्म, मैंने कहा सर आई थिंक द इंट्यूशन में बी कि साइंटिस्ट वांट टू पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कि हाउ मच देयर मॉडल इज एबल टू क्लासिफाई द पॉइंट्स करेक्टली और नॉट। फिर यहाँ पे वो मूव ऑन हो गए नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, मीन्स किसी भी क्वेश्चन का सर दे डिडंट गिव रिव्यू कि गुड या फिर बैड, ये दो हाँ, शब्द वो इस्तेमाल ही नहीं करते ड्यूरिंग रिस्पॉन्स नहीं इंटरव्यू। देते, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। सर Obviously, they are digging further and they are supporting you also, giving you hints also. या वो उसमें देखते हैं कि क्या तुम राइट रास्ता पकड़ भी पा रहे हो कि नहीं। और ये मेन डिफरेंस होता है पीएसयू के इंटरव्यूज में और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यूज में। पीएसयू वगैरह के इंटरव्यूज या कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज इज लाइक मैंने क्वेश्चन दिया, वन लाइनर, आपने आंसर दिया। आई एम चेकिंग योर नॉलेज। हियर आई डू नॉट चेक योर नॉलेज। I presume you have the knowledge, but I'm checking how do you use that knowledge in finding some problem or solution to some problem जो new है, बिल्कुल नई चीज है। That is what the research is actually. yes sir, and this is where the Yourpedia has helped me a lot, because my end sem examination ends on 22 November and my interview is on 27th November. There is only 1 week in between. So I took the हम्म, Yourpedia interview mock, full mock, and mock हम्म, टेस्ट से मेरे को सबसे ज्यादा जो हेल्प मिली वो यही मिली कि आई गेट टू नो कि मेरे को किसी भी क्वेश्चन का किस पॉइंट से आंसर स्टार्ट करना है और किस पॉइंट पे आंसर एंड करना है, yes. और कितनी देर तक देना है, लाइक कि ना ज्यादा वो लेंदी बने ना बोरिंग हम्म, बने, जो पॉइंट हम्म, है वो पॉइंट की बात डिलीवर हो जाए। it's true. चलिए अर्पित, इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू और बहुत सी इनपुट्स आपसे पता लगी हैं। अब लास्ट में अगर आप कोई भी पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें प्रोस्पेक्टिव साइंटिस्ट को जो डीआरडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, आपने पूरी प्रोसेस को देखा, फॉलो किया है, तो क्या आप एडवाइस करना चाहोगे कैंडिडेट्स को जो कोई चाहता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू सुन रहा होगा कैंडिडेट जो डीआरडीओ का पार्ट बनना चाहता है, तो मेरे को भी डीआरडीओ का साइंटिस्ट बनना है, बच्चे सोचते हैं ऐसा, उनके लिए कोई एडवाइस आप। सर इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्रू आउट द इंटरव्यू, एक स्माइल हमेशा फेस पे होनी चाहिए, और आप ना ज़्यादा नर्वस दिखें ना ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखें, और आप ये ना सोचें कि अगर मैं 100% सही आंसर दूंगा तभी आपका सिलेक्शन होगा।
अगर आप 60% 70% भी आप उनके आंसर क्वेश्चंस का आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं तब भी वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट अ मेमोराइज्ड गाय, दे वांट अ गाय जो कि उस डायरेक्शन में सोच सके, जैसा कि आपने भी मेंशन किया। हम्म। क्योंकि आई वॉज गेट सो मच पैनिक, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी था। इन द फर्स्ट हाफ आवर आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, पर इन द लास्ट आवर आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी पैनिक। एंड आई आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने वहां से एग्जिट लेते टाइम उनको ग्रीट भी किया या नहीं, क्योंकि आई वॉज लाइक मुझे ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे हो गया तुम्हारा। हम्म। या पानी नहीं था, गला भी सूख गया था। और हम्म। वो इस तरीके से उन्होंने कर दिया था लास्ट में कि आई वाज लाइक कि अब तो बस बाहर जाना है। एंड आई रिमेम्बर कि वो पहले आपके लैपटॉप्स फोन्स वगैरह, मतलब बिल्डिंग में एंटर करने से पहले वो ले लेते हैं। हम्म। या एंड आई वाज मैंने अपना लैपटॉप एंड फोन वापस लिया वहां से, और पापा हम्म। का जस्ट तभी कॉल आया जैसे मैंने फोन को स्विच ऑन किया। एंड जब मैंने बात की तो उन्होंने पूछा कि इंटरव्यू कैसा गया, एंड आई वाज लाइक 40% क्राइंग कि इंटरव्यू तो गया। एंड वो ऐसा फेज था कि हम्म। उस फेज में मैं वो लैपटॉप लेना भूल गया और मैं अच्छा। वहां से चला गया। एंड आई अच्छा। बोर्डेड इन द ट्रेन, और मैं ट्रेन हम्म। से दिल्ली से निकल गया। फिर इन द अच्छा। हाफ वे आई रिमेम्बर कि मतलब वहां से लैपटॉप वही निकल छूट चुका गया। था, या हम्म। लैपटॉप छूट गया। तो फिर इन हम्म। द नियरेस्ट स्टेशन आई गेट आउट ऑफ द ट्रेन, आई रस्ट टू द आरईसी बिल्डिंग हम्म। एंड टेक माई लैपटॉप। सो ये सब थोड़े कॉमन इंसिडेंट्स हैं जो कि जनरली होते रहते हैं स्टूडेंट के साथ, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं ये पैनिक नहीं करता तो मेरा इंटरव्यू शायद और भी ज्यादा बेटर जा सकता था, कि हम्म। जैसे स्टार्टिंग का हाफ आवर अच्छा गया, लास्ट का हाफ आवर भी अच्छा जा सकता था। बट ये पैनिक हो गया जिसकी वजह से गड़बड़ हो गया। एक्चुअली जो इंटरव्यू लंबा चलता है ना अर्पित, कई बार कैंडिडेट पूछता है सर लंबे इंटरव्यू का इंटरप्रिटेशन क्या है। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। इंटरव्यू लंबा तब चलता है जब पैनल को ये श्योर नहीं होता कि हमें ये कैंडिडेट लेना है कि नहीं लेना है, और फिर वो चलता जाता है। तब तक वो लगे रहते हैं जब तक उनको श्योर नहीं हो जाता कि हाँ हमें लेना है या नहीं लेना है। सो दे आर स्टिल इनडिसिसिव। बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहा होगा कि अर्पित हम लें अर्पित को या ना लें। फिर वो पूछते चले गए, यस देन द सर। मोमेंट केम वेयर दे डिसाइडेड या लेना है या नहीं लेना है। तो पौने 2 घंटे के इंटरव्यू के बाद आपको लिए भी जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी लेने की होती है, मतलब 60% प्रोबेबिलिटी की लेगा वो। एक्चुअली वहाँ पे हर एक जो इंटरव्यूअर था वो 20 to 30 मिनट्स स्पेंड कर रहे थे मेरे पे। वो पूछे जा रहे थे आगे आगे, एंड इन द लास्ट, जब लास्ट वाले वो पूछ रहे थे लास्ट इंटरव्यूअर, तो द चेयरमैन हैज टोल्ड हिम कि इट शुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ओके। ओके। हम्म। तो ये क्या सारे कैंडिडेट्स को इतना टाइम लिया क्या उन्होंने? इतना तो नहीं हो सकता, दो पौने दो यस सर, घंटे 1 आवर तक तो सबका हुआ था लगभग, क्योंकि हम्म। उस दिन में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू शेड्यूल्ड था, मीन्स 10 का था पर सिर्फ 4 ही देने आए थे। आई वॉज द हम्म। फोर्थ वन, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द आई थिंक 9 और 10 मे बी। एंड मेरा हम्म। आफ्टरनून के बाद में मेरा आफ्टर लंच मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, फोर्थ वाला। ओके, सो ये एक्सटेंडेड इट बिकॉज अदरवाइज हाफ एन आवर 45 मिनट्स होता है, बट इट यस वाज सर, डबल। एंड इट वाज आल्सो द फर्स्ट डे ऑफ द इंटरव्यू। ओके। चलिए अर्पित, इट वाज रियली नाइस, नाइस सेशन विद यू। बहुत सी इंफॉर्मेशन पता लगी। एंड एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, DRDO बहुत ही वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड जैसे आप बोलते हैं ना कि I want to work in an organization which further is working for the national safety, security, and also DRDO is a wonderful organization. Moreover, it is related to defense. So किसी भी कंट्री का, किसी भी गवर्नमेंट का मेन प्रायोरिटी डिफेंस के ऊपर होता है। और डिफेंस रिसर्च इज समथिंग विच एक्चुअली इज नाउ डेज रिक्वायर्ड। तो जितने बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो अपने डिफेंस रिसर्च या डिफेंस की स्ट्रेंथ के ऊपर ही सर्वाइव और थ्राइव करती हैं। और इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे। सो आई एम वेरी श्योर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट बन रहे हैं अर्पित, इट्स मैटर ऑफ प्राउड फॉर नॉट ओनली यू, योर एंटायर फैमिली एंड कम्युनिटी। So I थैंक यू wish सर। you all the very best with your journey ahead in DRDO. Thank you. थैंक यू।